morning everyone. Today's thought is never stops learning because life never stops teaching. Today's date is 2nd of August 2020 and day is Sunday. Our class, take a 1-minute relief. Close your eyes and keep your hand like this. Start. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Open your eyes and keep your hand down. Good morning everyone. This is your first period. It is of English. Firstly, I am going to take your English rhymes classes. Take out your left hand like this and right hand like this and hold it together and say with me. I am going to recite a poem. Teddy bear, teddy bear. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, off to school. Once again, repeat with me. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, off to school. Students, learn this rhyme at home nicely. Students, this is your first period of English written period, so take out your notebooks. And our today's topic is 3-letter words of E-sounding words. E-sounding words are those words where in words E sound is main. Okay? When those words E sound is main, that words are called E-sounding word. E, the phonics of E is E, elephant. The phonic of E is E. छोटी से इमली, the phonic of E is E. So, in those words where E sound is special, those words are called E-sounding words. So, 2 letters are given here in front of you all. We will add one more letter to complete 3-letter word of E-sounding. 3 letters, that is 1, 2 and 3. You know about the counting of 3, right? So, we will add one more letter because 2 letters are given here, right? E and T is given here, E and D is given here, E and N is given here, E and G is given here. 2 letters are already here. We will add one more letter to form a E-sounding word. 3-letter E-sounding word. We will write 3 words in each. So let's start with E-T. Set. S-E-T. What we add with E-T? We add S with E-T and here is a word that is set. After set, what we will add with E-T? Wet. W.
what to write here? We will write here T. Then now 3 words are done here of 3 letter E sounding words. Okay? 3 letter words. H-E-N, hen, P-E-N, pen, and T-E-N, ten. Alright? Now next is E-G. E and G. So we will write E-G here. Take a single word, single letter to write here. What will be? It will be L, leg,
In the place of B, I am going to take R. So the word is R-E-D, red. Now in the place of B and R, I am going to take F. And the word is F-E-D, fed. And E-D are same in three, right? E is here, E is here, E is here. What we change? We change B to R, R to F. In first I write R here, in second I write F here. So, bed, red, fed. These all are rhyming, right? Bed, red, fed. In next, L-E-G, leg, we will write E-G here and here. We will convert only letter L to another letter to make a word. L-E-G, leg, P-E-G, pack. We will write P in the place of L. And now we will write D in the place of P. What we convert? We convert L to P, P to D. In the place of L, first I write P here, then I write D here, and the words and the rhyming words are leg, pack, dead. In next, bell. So we will write E and double L as same, and we will convert the first letter, and the first letter is B. So in first we will write W-E double L. Well, well, and in next H-E-double-L, hell. We convert B to W, W to H to form two words of rhyming word, and E-L remains same. See, E-double-L is here and E-double-L is here. Also, we only convert the first letter, and the rhyming words are bell, well, and hell. In next, B, B double E, so we will write double E the same. Okay, now we will convert B to another letter. So B, S double E, C, and F double E, F. We convert B to S, S to F. Now the rhyming words are B, C, fee. Let's repeat it. Den, den, nun. Pet, wet, bet. Leg, red, fed. Leg, peg, jag. Bell, well, hell. B, C, fee. These are rhyming words of given word. Okay? So students, that is given in your copy, and you have to complete it with the help of this video or help of your parents, your elders. So do complete your work on time. We will meet in our next class. And one more thing, and very special thing, the writing will be neat and clean. So we will meet in our next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. Students, this is your second period. It is of Hindi. Now I am going to take your Hindi oral classes. Take out your left hand like this and right hand like this. Answer with me. I am going to recite a poem. तीन चूहिया थी, तीन चूहिया थी, वो तीनों रोती थी। एक पटाखा छूटा, जैसे कोई पत्थर टूटा। डर गई तीनों चूहिया, पहली चूहिया हो गई, दूसरी चूहिया हो गई, तीसरी से भागा ना गया। फिर क्या हुआ? पकड़ी गई चूहिया, हाय बेचारी चूहिया। Once again, repeat with me. तीन चूहिया थी, वो तीनों रोती थी। एक पटाखा छूटा, जैसे कोई पत्थर टूटा। डर गई तीनों चूहिया, पहली चूहिया हो गई, दूसरी चूहिया हो गई, तीसरी से भागा ना गया। फिर क्या हुआ? पकड़ी गई चूहिया, हाय बेचारी चूहिया।
Students, learn this poem nicely at home. So student, this is your second period. It is of Hindi written class. Okay, so first of all, take out your Hindi notebook and open up the page. And today's topic is पहले वर्ण को पढ़कर उसके समान वर्ण पर गोला करिए। आपको हेडिंग समझ आ रही है? आज का टॉपिक हमारा क्या है? पहले वर्ण को पढ़कर उसके समान वर्ण पर गोला करिए। मीन्स कुछ वर्ण मैंने यहां पर लिखे हुए हैं और यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। आपको लाइन दिख रही है ना? मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके बाद मैंने कुछ और वर्णों को लिखा हुआ है। लिखा है ना? जैसे यहाँ पर मैंने का लिखा था, इसके बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसके बाद कुछ और वर्णों को लिखा। वो और वर्ण क्या है? जैसे यहाँ का से कबूतर, गा से गमला, चा से चम्मच और का से कबूतर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग तरह से वर्ण कैसे लिखे हुए हैं, है ना? तो हमारी ये पूरी सीधी लाइन है। ओके, इसमें आपको देखना है जो वर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है वो वर्ण इस लाइन पे कहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, जैसे यहाँ पर का से कबूतर लिखा हुआ है। अब आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सा अक्षर हमारा का से कबूतर है। ओके, तो उसी अक्षर पर हमें एक गोला बनाना है। गोला में सर्कल करना है हमें इस तरह से। ओके, समझ आ गया ना आपको? इसी तरह से आपको इस लाइन में भी करना है। यहाँ मैंने जा से जग लिखा हुआ है और अन्य कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। चा से चम्मच, जा से जग, इया खाली। ओके, नेक्स्ट डा से डमरू। इसके बाद मैंने फिर से कुछ और वर्ण लिखे हुए हैं। डा से डमरू, ठा से ठठेरा, आड़ा खाली। ओके, नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है? डा से दवात, दा से दवात। और यहाँ क्या लिखा है? पा से पतंग, फा से फल, दा से दवात। ओके, नेक्स्ट या से यज्ञ, वा से वक्त, या से यज्ञ, रा से रथ। ओके, नेक्स्ट सा से सपेरा, सा से शलजम, हा से हल और सा से सपेरा। ओके, अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। ओके, सो यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? का से कबूतर। अब इस लाइन में देखिए, का से कबूतर कहाँ लिखा हुआ है? क्या ये है? नो, ये तो क्या है? गा से गमला। हमारा का से कबूतर ये बना हुआ है। ओके, सो वी हैव टू सर्कल इन दिस वर्ड। ओके, हम इस अक्षर पर एक सर्कल बना देंगे। ओके, इन नेक्स्ट लाइन जा से जग। क्या लिखा हुआ है? जा से जग। अब इन तीनों वर्णों में आपको देखना है कि जा से जग कहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो जा से जग हमारा ये लिखा हुआ है ना? तो हम इसमें एक सर्कल कर देंगे। ओके, इन अवर नेक्स्ट लाइन हमारा क्या लिखा हुआ है? ये डा से डमरू। क्या लिखा हुआ है? डा से डमरू। अब हमें देखना है इन तीनों वर्णों में डा से डमरू कहाँ लिखा हुआ है। ओके, क्या ये हमारा डा से डमरू है या ये नहीं? ना, डा से डमरू ये लिखा हुआ है। ओके, सो हम इसमें एक सर्कल कर देंगे क्योंकि हमें पहले वर्ण को देखना है और उसे देखने के बाद उसी के समान वर्ण पर हमें सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट लाइन, ये कौन सा वर्ण है?
आप जानते हैं ना इसे, आपने व्यंजन में पढ़ा था ना इसको। तो ये हमारा कौन सा वर्ण है? ये है द से दवार। क्या है? द से दवार। तो अब हमें इन तीनों वर्णों में देखना है कि द से दवार कहां पर लिखा हुआ है। ओके, क्या ये लिखा हुआ है? नहीं ना, द से दवार ये लिखा हुआ है। जैसा यहाँ पर बना हुआ है वर्ण, सेम इसी तरह से ये बना हुआ है। ओके, सो हम इस पर एक सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन, या से यज्ञ। क्या लिखा हुआ है? या से यज्ञ। ओके, अब आप देखिए इन तीनों वर्णों में या से यज्ञ कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ना। जैसा वर्ण ये लिखा है, सेम एज इट इज यहां भी लिखा हुआ है ना, तो हम इस पर एक सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन, ये कौन सा वर्ण है? सा से सपेरा। क्या है ये? सा से सपेरा। अब आप देखिए, ये तो हमारा सा से शलजम है, और ये हा से हल है, और ये सा से सपेरा। तो हमने यहाँ भी सा से सपेरा पढ़ा और यहाँ भी सा से सपेरा पढ़ा है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे कि ये लिखा हुआ है वैसे ये है, तो हम इस पर एक सर्कल कर देंगे। ओके, आपको समझ आ गया ना? जैसे ये भी का और ये का एक समान है, तो हम इस पे सर्कल कर देंगे। ये जा और ये जा एक समान है, तो हम इस पे भी सर्कल कर देंगे। ओके, ये डा से डमरू और यहाँ भी डा से डमरू लिखा हुआ है, तो हम इस पे भी सर्कल कर देंगे। इसके बाद ये दा से दवात यहाँ लिखा हुआ है, और इस रो में यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हम इस पे भी सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने या से यज्ञ लिखा हुआ है, और इस रो में यहाँ भी या से यज्ञ लिखा हुआ है, तो हम इस पे भी सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन, यहाँ पर मैंने सा से सपेरा लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन इसकी जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वहां पर मैंने फिर से सा से सपेरा लिखा हुआ है, तो हम इसमें फिर से सर्कल कर देंगे। ओके, अब हम इसके आगे का वर्ग पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों, हमारा आज का दूसरा टॉपिक क्या है? चित्र देखकर शब्द पूरा करें। अभी आपने क्या पढ़ा था? पहले वर्ण को पढ़कर समान वर्ण वाले से बोला लगाएं। अब आपको पढ़ना है चित्र देखकर शब्द पूरा करें। ओके, मैं यहाँ पर कुछ चित्र बनाऊंगी, मीन्स पिक्चर्स ड्रॉ करूंगी, जिन्हें देखकर आपको पहचानना है कि ये किस चीज की पिक्चर बनी हुई है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वर्णों को लिखूंगी, उन वर्णों में दूसरे वर्ण जोड़कर आपको एक नया शब्द तैयार करना है, जो कि यहाँ पर एक पिक्चर बनी होगी। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो आपको खुद पहचानना है। ओके, वैसे पिक्चर बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बनाया हुआ है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि आप लोग धीरे धीरे से पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकें। ओके, ताकि आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो जाए। ये हमारी पहली पिक्चर ड्रॉ हो गई। ओके, और इसका पहला वर्ड मैं यहां पर लिखने जा रही हूं। ओके, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है घा से घड़ी। ओके, और अब इसके बाद का अक्षर आपको सोचना है कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है। ओके, जो मैंने ये पिक्चर बनाई है उसी से रिलेटेड मैंने पहला वर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद का अक्षर आपको खुद से सोचना है कि आपको क्या लिखना है। ओके, इसके बाद मैं दूसरी पिक्चर ड्रॉ करने जा रही हूँ, उसे भी आपको पहचानना है। ठीक है, आपको वो भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी पिक्चर्स ली हैं, आपको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि
आपको समझ आ रहा होगा ये मैंने क्या ड्रॉ किया है ना। अब मैं इस पिक्चर का पहला वर्ण यहाँ पर फिर से लिखने जा रही हूँ। ये मैंने लिखा यहाँ पर ना से नल, और इसके बाद का अक्षर आपको सोचना है कि ये क्या बना हुआ है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड करना है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में ड्रॉ करने जा रही हूँ फिर से। ये सारे पिक्चर्स आप लोग आराम से अपने घर पे देखते हो और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा कि मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है। और ये पिक्चर तो ऐसी है कि आप लोग तो अपने घर पे जरूर देखते होंगे, है ना। तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बनाया हुआ है। ओके, हमारी थर्ड पिक्चर भी ड्रॉ हो गई। ओके, अब हम यहाँ पर इसका पहला वर्ण फिर से लिख देंगे। हमारा पहला वर्ण इसका क्या होगा, जा से। अब ये तो आपको सोचना है कि जा से क्या होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है इसके आखिरी का वर्ण। ओके, जिससे कि आपका एक नया शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं लास्ट पिक्चर फिर से ड्रॉ करने जा रही हूँ, जो कि क्या है, वो आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हो और हिंदी पे भी पढ़ोगे। ओके, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, आपको समझ आ रहा है ना कि मैंने क्या बनाया हुआ है। तो अब मैं इसका पहला वर्ण यहाँ पर लिख दूंगी और उसके आखिरी का वर्ण आपको खुद से सोचना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्या बनाया हुआ है, आपको पता है ये क्या है, ये है घर। क्या है ये, घर है। क्या है, घर। तो मैंने यहाँ पर घा से घड़ी तो लिखा हुआ है ना। तो जब मैं बोल रही हूं तो क्या निकल रहा है हमारा, घर। क्या निकल रहा है, घर। तो रा निकला ना, तो हम यहाँ पर जो दूसरा वर्ण लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, रा से रथ। क्या लिख देंगे, रा से रथ। तो हमारा ये नया शब्द बनकर तैयार हो गया, है ना। तो ये हमने क्या लिख दिया, घा रा घर। और मैंने यहाँ पर पिक्चर भी वही ड्रॉ की हुई है, ये घर जैसा है ना। ओके, तो अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, ये क्या बना हुआ है। आप लोगों के किचन में, वॉशरूम में या कोर्टयार्ड में कहीं भी होगा, टैप तो आप लोगों को दिखते हैं ना, है ना। ये मैंने बनाया हुआ है नल। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, टैप। क्या बोलते हैं, टैप। और हिंदी में नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नल। तो मैंने इसका पहला वर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरा वर्ण आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका दूसरा वर्ण क्या होगा, ला से लट्टू। ओके, क्या होगा, ला से लट्टू। तो हमारा ये क्या बन गया, ना ला नल। क्या बन गया, ना ला नल। ओके, नेक्स्ट ये मैंने क्या बनाया हुआ है, आपको समझ आ रहा है ना। इसके अंदर मैंने वाटर भी फिल किया है, आपको वाटर फिल दिख रहा है ना। तो ये क्या है, आपको समझ आ रहा है कि मम्मा के किचन में ये होता है ना, किचन में रहता है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, जग। क्या बोलते हैं, जग। इससे हम पानी लेकर पीते हैं ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका पहला वर्ण जा लिखा हुआ है, उसके बाद का वर्ण आपको लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, गा से गमला। क्या लिखेंगे, गा से गमला। तो हमारा ये क्या बन गया, जा गा जग। क्या बन गया, जा गा जग। नेक्स्ट ये मैंने क्या बनाया हुआ है, आपको समझ आ रहा है। ये मैंने पहले 1 बनाया, 1 के बाद 0 बनाया। क्या बनाया, 0। पहले मैंने 1 ड्रॉ किया, 1 ड्रॉ करने के बाद मैंने 0 ड्रॉ किया। तो 1 0 कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। और उसे हिंदी
हमारा ये एक वर्ण बनकर, दो वर्णों से एक नया शब्द बनकर तैयार हुआ ना, दा सा दस। ओके, आगे फिर से हम इसे रिपीट करते हैं। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, घर। तो मुझे यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पर क्या फिल किया, रा। जब मैंने रा फिल कर दिया तो इससे एक नया शब्द बनकर तैयार हुआ, जो कि क्या हुआ, घरा, घर। ओके, इन नेक्स्ट पिक्चर, ये कौन सी पिक्चर है, विच पिक्चर इज दिस, दिस इज टैप, दिस इज टैप। ये क्या है, टैप है, मीन्स नल है। तो नल लिखने के लिए सबसे पहले मैंने ना लिखा, ना लिखने के बाद मैंने यहाँ पर ला से लट्टू लिखा, और दोनों वर्णों को जब मिलाकर पढ़ा तो क्या बना, नाला, नल। ओके, नेक्स्ट ये मैंने क्या बनाया हुआ है, जग। क्या बनाया हुआ है, जग। तो जग लिखने के लिए सबसे पहले मैंने जा लिखा, जा के बाद गा लिखा, और जब जा और गा को मिलाकर पढ़ा तो क्या बन गया, जागा, जग। क्या बन गया, जग, जग। ओके, नेक्स्ट पहले मैंने 1 ड्रॉ किया, फिर 0 ड्रॉ किया, 1 0 10, मीन्स यहाँ पर मुझे क्या लिखना था, दासा 10। ऐसे ही आपको भी लिखना है, दा लिखेगा, फिर दा के बाद सा लिखेगा, और इन दोनों वर्णों को मिलाकर एक नया शब्द तैयार हो गया, जो कि क्या है, दासा 10। ओके, आपको समझ आ गया ना। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू नोटबुक। ये आपका पहला वर्ग है, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि पहले वर्ण को पढ़कर उसके समान वर्ण पर गोला करिए, है ना। समझाया था ना मैंने आपको। इसके बाद आपको नेक्स्ट वर्क करना है, टर्न योर पेज। आपको ये वर्क करना है, ओके, जिसमें से मैंने यहाँ पर ये पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, इन्हें देखकर आपको इन शब्दों को पूरा करना है। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, नाउ मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। So student, this is your third period. It is of maths written class. So take out your maths notebook and open up the page. And today's topic is table of 2 and 3. Table of 2 and 3. Okay? So, first of all, we will write here 2 and put multiplication sign. I am going to show you 2 symbols. Okay, which symbol is this? This is multiplication sign. This is multiplication sign. Okay, and this is equal sign. This is equal. So this is equal sign and this is multiplication sign. Okay, so here I have, first of all we will write here 2. After this we have to put multiplication sign, and we have to write here 1 and put equal sign. Okay, after this we have to write here 2 times 10 times 2. Okay, we have to write here 10 times 2. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, and put multiplication sign also 10 times. So first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9 and 10. Okay, after this we have to write here 1 to 10 counting. Okay, so firstly we have to write here 1. What comes after 1? 2.
And what comes after 2? That is 3. So we have to write here 3. After this 4. After this 5. After this 6. After this 7. 8. 9 and 10. Okay, and put equal sign also 10 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. Now we have to multiply in these numbers. Okay. So first of all we have to multiply in these numbers. 2 into 1 is equal to 2. Okay. 2 into 1 is equal to 2. Next 2 into 2 is equal to 4. Okay. Next 2 into 3 is equal to 6. Okay. Next 2 into 4 is equal to 8. Next 2 into 5 is equal to 10. Next 2 into 6 is equal to 12. Next 2 into 7 is equal to 14. Next 2 into 8 is equal to 16. Okay. Next 2 into 9 is equal to 18. 1 8. 18. Okay. Next 2 into 10 is equal to 20. Okay. Again we have to read it. 2 ones are 2. 2 twos are 4. 2 threes are 6. 2 fours are 8. 2 fives are 10. 2 sixes are 12. 2 sevens are 14. 2 eights are 16. 2 nines are 18. And 2 tens are 20. Okay. Your table of 2 is completed. Now move to our next topic. Okay. And this is table of 3. What is this? This is table of 3. Okay. So firstly we have to write here 3. Okay. The same as it is the table of 2. Okay. So firstly we have to write here 3 and put multiplication sign. Okay. And after this we have to write here 1 and put equal sign also. Okay. After this we have to write in this box 3 10 times. Okay. So write it 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. We have to write 3 in 10 times. Okay. And put multiplication sign also 10 times. Just like it. Okay. And don't touch top line. You have to touch only bottom line. Okay. After this we have to write here 1 to 10 counting. Okay. 1. What comes after 1? That is 2. What comes after 2? That is 3. What comes after 3? That is 4. After this 5.
After this, 6. After this, 7. After this, 8, 9, and 1 0, 10. Okay, and put equal sign out also. 10 times. Okay. Now after completing this, we have to multiply in these numbers. Okay. So 3 into 1 is equal to 3. 3 into 2 is equal to 6. 3 into 3 is equal to 9. 3 into 4 is equal to 1 to 12. Okay. Next, 3 into 5 is equal to 1 5 50. Next, 3 into 6 is equal to 1 8 18. Okay. Next, 3 into 7 is equal to 21. 21. 21. Okay. Next, 3 into 8 is equal to 24. 2, 4, 24. 3 into 9 is equal to 27. 3 into 10 is equal to 30. 30. Okay. Now read it again. 3 ones are 3. 3 twos are 6. 3 threes are 9. 3 fours are 12. 3 fives are 15. 3 sixes are 18. 3 sevens are 21. 3 eights are 24. 3 nines are 27. 3 tens are 30. Okay. Now read it again. Okay. 2 ones are 2. 2 twos are 4. 2 threes are 6. 2 fours are 8. 2 fives are 10. 2 sixes are 12. 2 sevens are 14. 2 eights are 16. 2 nines are 18. And 2 tens are 20. Okay. Now read table of 3. 3 ones are 3. 3 twos are 6. 3 threes are 9. 3 fours are 12. 3 fives are 15. And 3 sixes are 18. 3 sevens are 21. 3 eights are 24. 3 nines are 27. And 3 tens are 30. Okay. Now I'm going to show you notebook. Look at here. Okay, this is your first topic, table of 2. You have to write in these boxes. Okay, and this is table of 3. Okay, so you have to write here table of 3 with neat and clean handwriting with the help of your parents.